اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت پیارا اور اہم ٹاپک، اہم عنوان ہے رب راضی تو سب راضی۔ آج کے اس بیان کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات 8:30 بجے ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ اگلا دن پہلی بڑی خبر غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر حملے کے لیے ظالم، قاتل، آتنکی امریکہ نے ہری جھنڈی دکھا دی اور بہانہ صرف اتنا کیا کہ حماس کو ختم کریں، مگر شہری علاقوں میں احتیاط برتیں، وہاں بمباری نہ کریں۔ مگر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک پورے ایک مہینے میں اسرائیل نے 99% بمباری شہری علاقے میں، بستی میں، سول سٹیزنز، بچوں پر، عورتوں پر، ہاسپٹل پر، اسکولوں پر کی ہے۔ ابھی تک 99% بمباری اسرائیل کی یہی رہی ہے، بس حماس ایک بہانہ ہے اور امریکہ بھی اصل آتنکوادی ہے، اور اسی لیے امریکہ نے صرف بہانے کے طور پر کہا کہ حماس پر حملہ کیجئے، یعنی حماس کے بہانے سے غزہ اور فلسطین کی پوری زمین پر قبضہ کرنا اصل مقصد ہے اور مسجد اقصی پر قبضہ کرنا اصل مقصد ہے۔ اب امریکہ نے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا کہ بالکل حملہ کرو غزہ پر، لیکن حماس کو ختم کرو۔ تو حماس تو بہانہ ہے، لیکن عام شہریوں کو نشانہ بنانا، وہاں سے نکالنا، پورے فلسطین پر اور مسجد اقصی پر قبضہ جمانا، یہ اصل نشانہ ہے، یہ اصل مشن اور مقصد ہے۔ تو پہلے ہی دن سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ اصل آتنکوادی امریکہ ہی ہے۔ اگلے دن بڑی خبر آ رہی ہے اتراکھنڈ کی اس سرنگ کو لے کر جس میں 41 مزدور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن قربان جاؤں منا قریشی پر اور ان تمام مسلم جوانوں پر، مزدوروں پر، انجینئرز پر جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر 41 بھارتیوں کی جان بچائی۔ میں نے کہا تھا نا کہ گودی میڈیا اور انٹرنیشنل آتنکی میڈیا مسلمانوں کے اچھے کام کو نہیں بتا رہا ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم خاص طور سے بتا رہے ہیں کہ منا قریشی اور جو بھی مسلمان ہیں یہ اصل ہمارے
हीरो हैं। उत्तराखंड की टनल में फंसे मजदूरों को निकालने वाला हीरो मुन्ना कुरैशी और जितने मुस्लिम नौजवान हैं ये असल हीरो हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बदमाश चैनल भी इनको नहीं बता रहे हैं। ये मजदूर जो सुरंग से निकाल लिए गए हैं, इन मजदूरों ने फोन पर नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से बात की जिन्हें 17 दिनों के बाद निकाला गया। बिहार के एक मजदूर सबा अहमद ने कहा कि हम सुरंग में भाइयों की तरह रहते थे, हम सब साथ थे। इस गुफ्तगू की वीडियो वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से जारी किए जाने के बाद वायरल हुई है। हमें यकीन है कि इस बार 26 जनवरी में इन तमाम मुसलमानों को जिन्होंने 41 भारतीयों को बचाने का काम किया है, इन हीरो मुसलमानों को इन तमाम जवानों को जिन्होंने इतना बड़ा एहसान किया है, 26 जनवरी को इनको बाकायदा मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाना चाहिए। आइए नाज़रीन, तेलंगाना में इलेक्शन है, हम जानते हैं आज वोटिंग है, लेकिन वहां पर जो रैलियां, प्रचार प्रसार, तकरीरें, भाषण हुए हैं, उसमें राहुल गांधी का भाषण काफी लोगों को पसंद आया। राहुल गांधी ने कहा कि देखो, मोदी की मुखालिफत करने पर, मोदी का विरोध करने पर मुझ पर अब तक 24 केसेस हो चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर एक भी क्यों नहीं? इस सवाल ने लोगों के कान खड़े कर दिए। और सच बात है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार मोदी के, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इन पर केस क्यों नहीं होता? तो राहुल गांधी ने समझाया कि ए टीम और बी टीम का मसला है, लोगों को उकसाया जाता है और लोग बेचारे, जाहिर बात है, यूं समझिए कि भोले भाले लोग हैं, वो समझते ओहो असदुद्दीन ओवैसी क्या बहादुर है, कितनी डेयरिंग से बोल रहा है। लेकिन जरा सोचो कि असदुद्दीन ओवैसी पर एक भी केस क्यों नहीं होता? इसलिए कि मोदी हुकूमत चाहती है कि ये बोलते रहे और नफरतें फैलते रहे। तो राहुल गांधी ने कहा कि देखो, मुझ पर मोदी के खिलाफ बोलने पर 24 केसेस हो गए, लेकिन ओवैसी पर एक भी आखिर क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि हुकूमत की मंशा है कि नफरतों को बढ़ावा देना, और असदुद्दीन ओवैसी जब ये काम करते हैं तो हुकूमत का काम बड़ा आसान हो जाता है। हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलती है, फिर एक तरफा वोटिंग होती है। तो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के, मोदी जी के बहुत काम के हैं, इसलिए उनसे स्पेशली बीजेपी प्यार करती है और उन पर एक भी केस कहीं भी नहीं होता है, ना हुआ है। आइए एक बड़ी खबर इस वक्त रियासत गुजरात से आ रही है। जी हां, गुजरात हाई कोर्ट ने मंगल को एक PIL को निकाल कर फेंक दिया, जिसमें मसाजिद में अजान या इबादत के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया था कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसी एक PIL हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट ने उसे निकाल कर फेंक दिया, इसे मुकम्मल तौर पर गलत मफरूजे पर मबनी करार दिया। और डिवीजन बेंच ने अर्जी गुजार ये भी पूछा कि क्या अर्जी गुजार ये दावा कर सकता है कि मंदिर में आरती के दौरान घंटियों और घड़ियाल का शोर बाहर नहीं सुनाई देता? बजरंग दल लीडर की तरफ से दायर अर्जी में दावा किया गया है कि लाउड स्पीकर के जरिए अजान से होने वाली सौती आलूदगी लोगों की सेहत को मुतासिर करती है, खास तौर पर बच्चों की, और दूसरी सूरत में तकलीफ का बाइस बनती है। ताहम हाईकोर्ट ने कहा कि दावों की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। अदालत ने कहा कि अजान दिन के मुख्तलिफ औकात में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक दी जाती है, हालांकि 10 मिनट भी गलत है, अजान सिर्फ 3 मिनट की होती है। खैर, गुजरात हाईकोर्ट ने इस नफरती चिंटू और इस जहरीले शख्स की अर्जी को निकाल कर फेंक दिया। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वही मणिपुर जो 6-7 महीने से जल रहा है, और अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं कि वहां का दौरा करे, मगर अभी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमित शाह ने इसे बड़ी कामयाबी बताई। किस बात को? जी हाँ, मणिपुर में बागी ग्रुप UNLF यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसने अमन समझौते पर सिग्नेचर किया, दस्तखत किया। तो अमित शाह ने इसे तारीखी कदम बताया कि यह मोदी हुकूमत की बहुत बड़ी जीत है। अरे बेशर्मो, ये बहुत बड़ी हार है
کہ 7 महीने तक के आधा मणिपुर जल गया, सैकड़ों लोग मर गए, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत नहीं, तुम प्रचार प्रसार में लगे हुए हो। और अगर 7 महीने के बाद मणिपुर की तबाही के बाद अगर कोई अमन समझौते पर दस्तखत करता है और इसी पर तुम खुश हो जाते हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हो, तुम्हारा 56 इंच का सीना कमजोर पड़ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो तुम इसे तारीखी कदम बताते हो, तो इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी और क्या हो सकती है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। आप जानते हैं कि तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन को लेकर काफी हंगामा रहा। आज वहां पर बाकायदा यूं समझिए कि वोटिंग होगी, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। खैर, बीजेपी तो नफरती पार्टी है, इसलिए तेलंगाना के तकरीबन लोगों ने उसे नकार दिया है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस में सख्त मुकाबला है। अब बीआरएस से भी मुसलमान और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी काफी नाराज है, क्योंकि बीआरएस ने हमेशा मुसलमान मुखालिफ मुद्दों में और मामलात में बीजेपी का सपोर्ट किया है। लेकिन बीआरएस की गोद में कई मुस्लिम बड़ी बड़ी पार्टियां या मुसलमानों के जो लीडर कहे जाते हैं वो भी बीआरएस की गोद में बरसों से बैठकर मलाई खा रहे हैं। तो बीआरएस से काफी लोग नाराज है। अब तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस की हवा चल रही है। खैर, 2290 उम्मीदवार मैदान में, रियासत भर में 35,655 पोलिंग सेंटर कायम कर दिए गए हैं। अब आज असेंबली इलेक्शन, आज वोटिंग तेलंगाना में होने जा रही है। दुआ कीजिए कि 100% वोटिंग हो और नफरतों और नफरती पार्टियों से तेलंगाना आजाद हो जाए। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। अगले दिन रियासत महाराष्ट्र से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतरीन सिला, बेहतरीन बदला, जमीयत उलमा के जिम्मेदारों को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। जी हाँ, जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मुसलसल कोशिशों और नायब वजीर आला अजीत दादा पवार से नुमाइंदगी मुलाकात के नतीजे में आज अच्छी खबर सुनने में आ रही है कि मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती कारपोरेशन को जो कर्ज 30 करोड़ था, वो 30 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की जमानत देने का रियासती काबीना ने फैसला कर लिया है। यानी जमीयत उलमा की ये बड़ी कामयाबी है। रियासत महाराष्ट्र में अक़लियती तलबा के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया जा रहा है। वजीर आला सीएम एकनाथ शिंदे की सदारत में आज की काबीना की मीटिंग में कुछ अहम फैसले सामने आए हैं और इसका बड़ा श्रेय, इसका बड़ा सहरा जमीयत उलमा के सर बंधता है। अल्लाह जमीयत उलमा और इसके बुजुर्गों को, इसके कायदों को दुनिया आखिरत दोनों जहां में बेहतरीन सिला, बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। अगला दिन सीएए और एनआरसी का भूत फिर जिन जो है बोतल से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है और बीजेपी बोखलाई भी है, बड़ी परेशान है, तिलमिलाई भी है। नफरतों के जितने मुद्दे हो सकते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के अंग्रेजों की तरह जितने मुद्दे हो सकते हैं, बीजेपी उन तमाम मुद्दों को उछाल कर 2024 के इलेक्शन को पोलराइजेशन करके, तकसीम करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर जीतना चाहती है। तो अब खबर आ रही है कि वजीर दाखिला अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है। जी हाँ, कोलकाता में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि सीएए को नाफिज होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वो सीएए को जरूर नाफिज करेंगे। अमित शाह मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी के एहतजाजी इजलास से खिताब कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने ये घटिया बात कही। अगले दिन बड़ी प्यारी खबर आ रही है। जी हाँ, ये पहले भी आ चुकी है, पहले भी अलग अंदाज में सामने आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्यारा मुल्क भारत, हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा मजलूमों के सपोर्ट और मजलूमों के साथ खड़े रहता है, जालिमों की मुखालिफत करता है। इस वक्त खबरें आ रही है
جی ہاں کہ اسرائیل حماس جنگ کے درمیان اقوام متحدہ میں UNO میں ہندوستان نے فلسطین کے مظلوموں کا سپورٹ کیا، فلسطین کی حمایت کی۔ روچیرا کمبوج کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ ہندوستان شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کرتا ہے، اور دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ 99% اسرائیلی اور امریکی فوجی آتنکوادیوں نے عام شہریوں کو، معصوم بچوں کو اور بے قصور عورتوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی آتنکوادیوں کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجاہدین سے لڑے، انہوں نے صرف مجاہدین اور حماس کو بہانہ بنایا اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان نے باقاعدہ اس کی مذمت کی ہے، نندا کی ہے، اور یہ کہا ہے اقوام متحدہ میں کہ ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ آیا دن بالی ووڈ کے مشہور اداکار سلمان خان کو ایک مرتبہ پھر جان سے مارنے کی دھمکی آئی ہے۔ جی ہاں، اور دھمکی دینے والے نے یہ کہا ہے کہ اس گمان میں، اس خیال اور وہم میں نہ رہیں کہ داؤد ابراہیم آپ کو بچا لے گا۔ سلمان خان آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لارنس بشنوئی کے اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر پیغام آیا ہے۔ ممبئی پولیس نے اداکار کو الرٹ کیا اور سیکورٹی کا جائزہ لیا، یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا واقعی یہ پوسٹ گینگسٹر لارنس بشنوئی کی ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن سلمان خان کو ایک مرتبہ پھر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔